Hello everyone, this is Muskan Mulwani, an educationist, author, blogger, and founder of EduCreate, where talent meets excellence. So, first of all, wishing you all a very happy International Women's Day. So, for this, EduCreate presents 28th talk show on the topic embryology and IVF, that is test tube baby. So, for this, we have invited our special guest, Doyle Boss Pandey ma'am. She is an IVF lab director at Indore Infertility Clinic. She is ESHRE certified senior clinical embryologist. Ma'am is a course director and trainer at Embryogeny. Her special interest is nuances of blastocyst culture, genetics, and use of AI for IVF lab automation. She is a web designer, SEO specialist, and avid blogger. Also, she is an MPISAR executive committee member. Now, I would like to request Joel ma'am to share your views on our today's topic. Over to you, ma'am. तो आईवीएफ इन शॉर्ट या टेस्ट ट्यूब बेबी जो आज से थोड़े जमाने पहले इसे कहा जाता था, दिस इज अ प्रोसेस इन विच आप अपने बॉडी से बाहर जब भी आपके एग्स या स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, जो कि आईवीएफ लैब में करते हैं आप, और उसके बाद उसको आप पेशेंट के एम्ब्रियो में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आईवीएफ कहेंगे। और आईवीएफ लैब वो पार्ट होता है जहाँ पे आप बॉडी से बाहर जब एग्स और स्पर्म रहते हैं, उसकी पूरी देखरेख आप जो करते हैं वो आईवीएफ लैब में करते हैं। और आईवीएफ लैब में जो काम करते हैं उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। उनको आप समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ वो एग्स और स्पर्म के डॉक्टर्स होते हैं। वो उसकी क्वालिटी असेसमेंट से लेकर उसका पूरा देखरेख जब बॉडी से बाहर है वो, तो ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है। सो All right. दिस वाज Ma'am, शॉर्ट। can I start with the questions? या श्योर। Okay. So, ma'am, your first question is differentiate between IVF and surrogacy. Okay, so IVF is the entire treatment where wherever you are achieving the method of, fertilization outside the body, whether that is through different fertilization method like ICSI, etc., whether it's a self egg or donor egg, this entire umbrella is called IVF. Now, within IVF, you have different kind of treatments. It depends on what the problem is. And surrogacy in normal IVF, just like what I explained a minute back, the embryo which is transferred to a female's uterus, right? In normal self cycle or own gamete cycle, that's what you call. But in surrogacy, you transfer the embryo into a surrogate mother's uterus. And this you need to do when, in certain cases, the patient might have some abnormalities or a missing uterus, or there are many medical conditions due to which the patient is unable to carry the pregnancy to term. In that case, you need a surrogate mother to carry this pregnancy to term, and that is called surrogacy. Ma'am, as you have said that embryo हम लोग transfer करते हैं Right. to the other woman, तो वो embryo transfer कैसे होता है? Like that I would तो watch. एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। उसमें ऑनेस्टली पूरी आईवीएफ के प्रोसेस में सबसे सिंपलर पार्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर का ही होता है। उसमें जो एम्ब्रियो आपके कल्चर डिश, पेट्री डिशेस में हम एम्ब्रियो रखते हैं, यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे ना तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे तो मैं आपको एक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सो पेट्री डिशेस में जो एम्ब्रियो बनते हैं, उन एम्ब्रियोज को में से आप जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है मॉर्फोलॉजिकली, उसको आप सिलेक्ट करते हैं। और एक कैथेटर जैसी चीज होती है, अगर आप समझेंगे माइक, उसका भी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, शेयर अ वीडियो। सो उस कैथेटर में उसे लोड किया जाता है और पेशेंट के ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड के रूट के थ्रू उस कैथेटर को विजुअलाइज करते हैं हम कि वो ट्रांसवेजाइनली यूट्रस में जा रहा है, और फिर उसे हम प्लंजर से इंजेक्ट करते हैं तो एम्ब्रियो फिर प्लेस हो जाता है यूट्रस के अंदर। All right. Your second question, how are fibroid cause of infertility? So by fibroid, you mean uterine fibroid. So uterine fibroids are of various kinds. Let's not get into technical discussion on the fibroid because उसके लिए gynecologist बता देंगे आपको। तो fibroid, हर fibroid infertility का कारण नहीं होता है। Fibroids can be of different types. They can be at different location and of different size. So depending on the kind of fibroid, its location and its size, it may be a reason for not conceiving or not being able to carry the pregnancy to term. So
व्हाट फाइब्रॉइड्स डू इज यूजुअली वो आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें अगर कहीं बड़ा साइज का 5 सेंटीमीटर और बड़ा साइज का फाइब्रॉइड है तो उस वजह से जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंड प्रेगनेंसी कई बार इम्प्लांटेशन के बाद वो फॉरवर्ड नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ वॉट एवर डिफरेंस इन एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी। तो इस कारण से फाइब्रॉइड कारण बन सकता है आपकी इन्फर्ट लैक ऑफ कंसेप्शन और टेकिंग द प्रेगनेंसी फॉरवर्ड इसका। पर हर फाइब्रॉइड ये करे जरूरी नहीं है, इसलिए असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर आप अल्ट्रासोनोग्राफी से उसकी असेसमेंट, एक प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वो जब असेसमेंट करते हैं तो कुछ पार्ट तो आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है, पर कुछ पार्ट जो होता है वो लैप्रोस्कोपिकली जब आप उसे टेस्ट कर देखते हो, बेटर विजुलाइज करते हो, तब पता चलता है। Okay. Does that answer the So your third question? question. Okay. Yes, yes. Your third question. Is it possible to cure infertility naturally? It's a very broad term question, very honestly. The answer is depends. So it depends on what age you are at, right? So if you are a young person, we all know we should be proud of our heritage of Ayurveda, for example. It's a natural, close to natural kind of a treatment. So so it is very important to know the reason for infertility. If the reason for infertility is known, then and the reason is, say for example you have a missing, some problem with your fallopian tube and it is destructed and it is there is some problem in that passage, then Ayurveda might not have too many, that need surgical intervention. But if the reason is infection of some kind and all that, then maybe you can try different options. But the most important factor here is age. So if you are at a younger age, आपकी उम्र कम है ना, तो आप चार चीजें ट्राई कर सकते हो. If you are 24, 25, you want to try everything in your body is controlled by whatever is the environment that you're in, which means the food that you're ingesting, the kind of pollution that you are dealing with. तो आपकी उम्र कम है, आप कुछ नेचुरल चीजें ट्राई करना चाहते हो, नो हार्म विद इट एट ऑल, आप ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, जिसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड या ऐसी टाइप की चीज के थ्रू ही पता चल पाएगी। बट अगर आपकी एज कुछ बॉर्डर लाइन आ गई है, 34, 35 की एज पे हो, आपके पास इतना वक्त नहीं बचता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्राई कर पाते हो, क्योंकि फिर आपकी ओवेरियन रिजर्व कम हो जाती है और फिर सिर्फ शॉर्ट ट्रीटमेंट जो है वही यूजुअली रिजल्ट देता है। तो दैट्स इन शॉर्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट एज यू आर एट and what is the reason for infertility. Okay. Fourth question. What is the exact use of AI in IVF lab? AI means what? Is it artificial intelligence Artificial or intelligence. anything else? Yes, it is artificial intelligence. So it's a very broad term question. So AI तो हर field में in today's days anything that can be automated, anything that can be prognosis, यानी आप जिसमें depending on current बहुत सारा data analysis करके अगर आप उसमें कुछ analyze करके prognostic value, मतलब आप उसमें आगे की futuristic probability बताना चाहो तो AI does help in that. तो AI के जो logic होते हैं ये सब कर सकते हैं इन सब टाइप की चीजों को। सो आज की डेट में करंटली अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी लैब में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो आप मैन्युअली डेटा एंट्री से लेके काफी चीज आप थोड़ी बहुत मैनुअल होती, थोड़ी बहुत ऑटोमेटेड इन द सेंस आप डिजिटाइज्ड वे में यूज करते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप इन सब चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो। आप बेस्ट पॉसिबल ग्रेड ऑफ एम्ब्रियोज जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आप मान लीजिए 5 एम्ब्रियोज बने हैं, आप एआई को ये एम्ब्रियोज की इमेजेस जब फीड करते हैं तो एआई बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस वो आपको बता सकता है कि कौन सी इसमें से बेटर प्रोग्नोसिस की है, कौन सी वर्स। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो बनाते हैं वो एक्सपीरियंस डे इन एंड डे आउट एम्ब्रियोज की असेसमेंट के बाद बना पाते हैं, राइट। तो जितना एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट होगा उसके पास उतनी केसेस का नॉलेज होगा। अब एआई टूल्स जब बनते हैं तब वो इन एक्सपीरियंसेस को वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट करते हैं और फिर टूल डेवलप होता है जो पिक्सल बाय पिक्सल एनालिसिस करके देते हैं। तो जो बहुत ही कम एक्सपीरियंस के एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, एआई उनसे बेटर कभी कभी परफॉर्म कर लेता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है इतने इमेजेस का। पर यूजुअली जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास
not only by their own experience, they are well read, उन्हें 4 चीजें दूसरों के लैब की भी पता रहती हैं, तो AI वहां तक अभी पहुंचा नहीं कि आप 100% ब्लाइंडली यूज कर सकते हैं, बट यहाँ तक पहुंचे जहां आप उसका हेल्प ले सकते हैं टू डिसाइड बिटवीन वेरियस फैक्टर्स. So, in short, yes, these are the main places where AI can be used. Oh, Sorry. that's tough. Fifth question is becoming embryologist a good option for career? Tell the difference between gynec and embryologist. Okay, so there are two questions to it. So first, let's go to the second part, which is who is a gynecologist, who is an embryologist. So gynecologist, I think it's pretty simple. You have to be, you are a doctor. So first you do your MBBS, then you do your MS in obs gynae or MD or DG or whatever, and you become a gynecologist. Gynecologist is the person who treats all kind of female issues, not only fertility. It can be adolescent, even after fertility, menopause, everything. Obstetrician are those who do the, take care of the pregnancy, surgeries during pregnancy, deliver the babies and all that. तो usually combination होता है, जो आप obs and gynae बोलते हो, तो obstetrician and gynecology का combination होता है. So these are gynecologists are actual doctors through an MBBS route. Now embryologists are the people who are taking care of embryos, which is a very focused, specific field in an IVF, where we take care of everything and anything related to oocytes, that is the gametes when they are outside the body, and take care of the entire IVF lab. Everything around the IVF lab has to be controlled by an embryologist. So embryologists जो होते हैं, उनकी by qualification, you can become an embryologist after MBBS or after Masters in Clinical Embryology or after attaining certificate courses in embryology or proper training, even after life sciences Masters or PhD, you can do that. So I hope the difference is clear. So the second part of the question is whether embryology is a good career choice. So it definitely is a very good career choice, because when you talk about embryology, you are almost, this field, what do people consider as good career choice? Something where it is a non-emergency and you have decent enough working hours and good enough pay scale, and you don't have, to shift cities that much, then that becomes a good career choice, whether you're a female or a male. So embryology is a good career choice because, first of all, it is a very noble profession. Just you're treated almost like doctors. You're given that much amount of respect. It's a good career choice because the demand is huge. We all know the kind of lifestyle and the environment that we are living in, and the kind of fertility issues which is rising day in and day out, and it is impacting both men and women. So in future, this problem is not going to reduce; it's only going to increase, and that is why the scope wise, you will need many more embryologists practicing in the field than we have now. And the penetration of IVF clinics would be in even small tier 2 tier towns and all those cities. Even currently, all the tier 2 cities have IVF centers, and many of them. Indore, for example, has 27 IVF centers. So, Okay. yes, yeah, small and big, all including. So that is why the field is very upcoming. The field is noble and it pays well if you keep on doing the job well. Initially, it is the first few years until you become an embryologist. It takes 4 or 5 years to get a hang of the field, get a hang of the kind of work that you're doing. So once you stick to that, the pay scale in those initial 4 or 5 years may not be that great. But if you मतलब इफ यू स्टिक टू इट, शिद्दत से काम करते रहो, आप पूरा सीख लो और इन्वेस्ट करो इसमें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आप सेल्फ लर्निंग, तो ये पैसा अच्छा देती है, मच कंपेयर इट्स कंपेरेबल टू अ लॉट ऑफ अदर. आप लाइफ साइंसेस में आपके जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन में इक्विवेलेंटली है, उससे बेटर ही पैसा देती है एम्ब्रियोलॉजी, पर यू हैव टू बी गुड एट इट. मतलब इसमें अगर आप अच्छे नहीं हो तो वो तो हर फील्ड पे लागू होता है, राइट? So that was the answer for embryology as a career. Ma'am, your sixth question is, what are the disadvantages of this process while achieving motherhood through IVF?
सो डिसएडवांटेजेस, वेरी ऑनेस्टली देखो, बात ये है कि अगर आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है तो टाइम पास में तो कोई कराता नहीं है ना। जिसको जरूरत पड़ती है उसे ही कराना पड़ती है, दे हैव नो ऑप्शन। आई डोंट थिंक कोई भी पेशेंट इसे बाई चॉइस कहता है कि हाँ मुझे आईवीएफ ही कराना है। अब ये भी इट्स अ नेचुरल थिंग, हम सबको पता है कि ताजी सब्जियां खानी चाहिए, खेत से तोड़ के घर पे लाके चूल्हे पे पका के खा लो, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी हम लोग घर पे सब्जियां फ्रिज में रख के 3-4 दिन पुरानी सब्जी, बिकॉज दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल, हमको पता है कि प्रॉब्लम्स है लेकिन हम वो करते हैं। तो सेम विद आईवीएफ, इफ यू कंपेयर इट विद अ नेचुरल प्रेगनेंसी, ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि डिसएडवांटेज इन द सेंस लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, उसके बाद ही कोई चीज मार्केट में आती है। यू नो, इट्स अ वेरी वेल रिसर्च फील्ड। 46 ईयर्स पहले इन्वेंट हुआ था ये प्रोसेस। तो ऐसे लॉन्ग टर्म हेल्थ में तो कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं दिखता है बेबीज के। हाउएवर, डिसएडवांटेज ये है कि नेचुरली प्रेगनेंसी इतनी प्रेशियस जब मानी जाती है ना, मोर सो एक मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को जब आईवीएफ से प्रेगनेंसी होती है। वो इतना ज्यादा केयर ले लेते हैं ना, और इतना ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल ये मत करो वो मत करो। तो बहुत सारी चीजें जो सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है पेशेंट्स सेल्फ इम्पोज, कि चलना नहीं है फिरना नहीं है, तो उनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, सेडेंटरी हो जाते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगे। बेबीज बोर्न आउट ऑफ आईवीएफ, उनको इस तरह से पाला जाता है कि मतलब उसकी हर इच्छाएं पूरी कर दे, तो वो डिसएडवांटेज तो अलग लेवल पे ही चलती है। बट एज सच कोई मेडिकली प्रूवन डिसएडवांटेज इन द बेबी एज वेल एज द मदर के जो ड्रग 3-4 महीने के लिए इंजेक्शन वगैरह लिए हैं, उनकी कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट यूजुअली तो नहीं होती है। सो दैट्स इट। मैम जैसे आपने अभी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में ही बताया, करियर में भी इवन बताया कि लाइक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ये वर्क रहता है, या जो इसके डिसएडवांटेजेस भी आपने बताए। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे नॉर्मल डिलीवरीज जो होती है, तो जो आईवीएफ के थ्रू जो डिलीवर मतलब हम लोग करते हैं, तो कोई डिफरेंस तो नहीं रहता है? बिकॉज हम लोग आईवीएफ, दैट मीन्स वी आर यूजिंग टेस्ट ट्यूब्स फॉर लाइक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो वो लाइक जो एम्ब्रियो बनता है या जो फीटस फॉर्म होता है, वो तो एक लेडी की बॉडी में ही होता है। तो यस यस, और नेक्स्ट उसमें कोई सेक्शन डिफरेंस नहीं है, टू या कोई नॉर्मल डिफरेंस। डिलीवरीज होती है, तो प्रोसेस देखो तो क्या, वही है। प्रोसेस वही है। इम्प्लांट होने के बाद का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम एज व्हाट नेचुरल कंसेप्शन, बस द ओनली डिफरेंस इज जो इनिशियल फ्यू वीक्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, उसको ल्यूटल फेज जिसको हम कहते हैं, उस ड्यूरेशन में जो मेडिकेशन है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी खुद हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जो वो हॉर्मोन्स को हम एक्सटर्नली थ्रू ओरल मेडिकेशन, जेल या इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट फ्यू वीक्स, जो फीमेल को ये दिया जाता है। बट आफ्टर दैट इनिशियल पीरियड ऑफ फर्स्ट फ्यू वीक्स, पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी की होती है वैसी ही होती है। इनफैक्ट आप अल्ट्रासाउंड करके नहीं बता सकते कि ये आईवीएफ प्रेगनेंसी है या ये नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी है। होता क्या है मुस्कान, कि कई लोग, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो लोग एक से ज्यादा एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर देते हैं एम्ब्रियोज में, ताकि सक्सेस रेट तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ताकि सक्सेस रेट आपको ज्यादा मिले। एक एम्ब्रियो है तो अगर एक्स है सक्सेस रेट, 3 एम्ब्रियो है तो 3x है, राइट? इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो पर ideally you should only do one single blastocyst, which is a day 5 का embryo, which is an advanced, जहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, डी सिलेक्शन या सिलेक्शन जो भी कहो। सो इसलिए कई जगह पे क्या करते हैं कि वो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए 3-3 एम्ब्रियोज दे देते हैं, तो ऐसे में ट्विन प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, कई बार ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं। बट आपकी बॉडी ना एक प्रेगनेंसी को हेल्दीली कैरी करने के लिए बनी है। ट्विंस के केस में जो काफी कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना होती है, नॉट नेसेसरी कि हर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो, बट आइडियल इज वन। ट्विंस होंगे तो नेचुरली यू कांट कैरी देम टू द, जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी थी एक सिंगल को ले जाने की, आप उससे थोड़े शॉर्ट फॉल करते हो किसी की भी बॉडी, तो आप ऐसे में सीजेरियन सेक्शन के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। इवन विद सिंगल प्रेगनेंसी, क्योंकि
ये प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं, पेशेंट बहुत डरे हुए रहते हैं। ऐसे में इट्स अबाउट रिस्क, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म पूरी प्रेगनेंसी अच्छी गई, आईवीएफ के थ्रू हुआ है एक एज के बाद, तो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास ना ज्यादा चॉइसेस नहीं है उस वक्त। 38-39 वीक में आने के बाद सब ठीक चल रहा है, और फिर पेशेंट भी ना कई बार, आजकल तो नॉर्मल पेशेंट जो बिना आईवीएफ वाले वो भी सामने से ही कहते हैं हमें पेन नहीं चाहिए, आप हमारा सेक्शन कर दो। तो पेशेंट भी वैसा होना चाहिए टू ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, जो कि काफी फीमेल्स में, आई एम सॉरी टू से, वो नहीं रहता है। वो पहले ही बोल देते हैं कि हमको हाँ, आप आपका सेक्शन कर पेशेंस दीजिए। लेवल भी नहीं, मेनली पेशेंस और विल हाँ, पावर भी पेशेंट। चाहिए हाँ, रहता है, वो अब नहीं पेन, बचा है ना। इनफैक्ट पहली डिलीवरी में आपको तो पता ही नहीं कि पेन कितना होता है। एक बार हुआ हो और आपने एक्सपीरियंस किया हो, तब दूसरी बार चॉइस करो कि भाई पिछली बार भुगते थे आपने। उनको पहले से ही ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। सो इट इज अ complicated decision which happens, at the end of the term, between a gynecologist and the patient and the patients of the patient. So इस complicated decision में फिर कई बार क्या होता है कि इट गोज अगेंस्ट अ नेचुरल डिलीवरी, और होता है कि भाई सब कुछ जब इधर तक आ ही गया तो लेट अस टेक अ लेस रिस्की रूट एंड लेट अस डिलीवर बाय अ सी सेक्शन। कई बार ऐसा हो जाता है। Okay. Ma'am, your seventh question. Usually, infertility is same in women, but we have some examples in our surrounding where we come to know about male infertility. What is this and how it is cured? So male infertility, actually honestly हाँ 40% जितना जो contributing factor है ना वो मेल infertility का रहता है। जैसे infertility clinics में अगर 100 पेशेंट आप देखोगे, उसमें से 35 से 40% केसेस में contributing factor मेल infertility का रहता है। So you can't say कि infertility में majorly female का ही रोल है। Some part of it is unexplained. कुछ पार्ट ऐसा होता है कि सारी रिपोर्ट्स दोनों के नॉर्मल है लेकिन नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। बट कुछ काफी सारे फैक्टर्स में मेल इनफर्टिलिटी जो है काफी हद तक 35 to 40% केसेस में कंट्रीब्यूटिंग रहते हैं। इधर कंबाइंड रहता है या सिंगली मेल इनफर्टिलिटी रहती है। तो इवन लास्ट 10 years में, स्पेशली पोस्ट कोविड, देखने में आया द काइंड ऑफ sperm quality that we see, the kind of sperm counts that we see have deteriorated very much. It is possibly because of the environmental factors, sedentary lifestyle, अल्कोहल, टोबैको, इस सब का तो बहुत ज्यादा फर्क स्पर्म पे पड़ जाता है। तो इसलिए इसका कारण तो यही है, इट्स द लाइफस्टाइल। सम ऑफ इट इज जेनेटिक, जेनेटिक कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस हैं मेल इनफर्टिलिटी के, बट कम पार्ट जेनेटिक होता है, काफी पार्ट ऐसा होता है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर से जहां इम्पैक्ट होते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर से विच विल कॉज एजोस्पर्मिया, विच मींस नो स्पर्म इन द सीमेन। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन दैट यू डू, क्या कॉज है उसका वो पता करना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से उसका क्योर फॉर एजोस्पर्मिया तो नहीं होता है, पर ये जरूर हो सकता है कि इफ the sperm production is happening but it is just about कि वो deliver नहीं हो रहा है, तो आप उसमें procedures, there are multiple procedures called PISA, माइक्रोटेसी, इनके थ्रू आप स्पर्म को रिट्रीव कर सकते हैं जो टेस्टीज है वहां से, एंड देन यू कैन अचीव फर्टिलाइजेशन। तो ये जो क्योर ऑफ male infertility depends on the kind of infertility that you have. At times, if you have borderline morphological problems और semen का motility का issue, sperm का motility का issue, अगर उसका cause your lifestyle है, which many times is, then ideally if you should, try exercising, try reducing your body weight, try having good proper sleep और गुड डाइट। ये सबका फर्क स्पर्म पे यूजुअली 10 to 12 वीक्स में देखने को मिल जाता है। अगर आपने ये सब पैरामीटर्स को कट ऑफ कर दिया तो आपको आपकी स्पर्म क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मिल सकती है इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। बट अगेन इट इज ऑल डिपेंडेंट, स्पर्म क्वालिटी खराब क्यों हुई है उसका पहले कारण जानना जरूरी है। बट इन जनरल मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप ट्राई प्लान कर रहे हो तो इट इज नॉट जस्ट कि वाइफ को ही कुछ अंडरगो करना है प्रोसीजर, आप अपना भी खाना पीना सुधार लो, अपना ईटिंग हैबिट के अलावा एनवायरमेंट, मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल,
एक्सरसाइजिंग ये सब कर लो, 3-4 महीने कर लो तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो बेस्ट पॉसिबल है 3-4 महीने में थोड़ा बहुत दिख जाएगा, नहीं तो फिर ऑल ऑब्वियसली दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन देने पड़ेंगे। Right, right. Ma'am, eighth question. What is the ratio of male and female infertility in your experience? As you have said just now that 35 to Yeah, 40% you have seen. yes, quite close to, 10 years back, somewhere around 30% बोल सकते थे, but now the kind of patients that we see at our clinic, about 35 to 40% have contributing effect to it. सिर्फ प्योरली मेल वाला फैक्टर जैसे जिसमें एजोस्पर्मिया हो गया, वेरी पुअर स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी, ये प्रोबेबली 15-20% केसेस में होता है, लेकिन जिसमें मेल भी इम्पैक्ट होता है और फीमेल भी इम्पैक्ट, ऐसे सब इंक्लूड कर लो आप, तो 35 to 40% केसेस हो जाएंगे। Okay. And my ninth question is PCOD and infertility one and the same thing? No, not at all. PCOD या PCOS is polycystic ovarian syndrome. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब पहले नॉर्मली एक नॉर्मल ओव्यूलेशन के वक्त कोई नॉर्मल फीमेल में एक पर्टिकुलर फॉलिकल, फॉलिकल मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एग होता है, सो एक पर्टिकुलर एक फॉलिकल डेवलप होना चाहिए और टाइमली उस फॉलिकल का रिलीज होना चाहिए, और अगर टाइमली इंटरकोर्स हुआ तो फिर उसके रिलीज होने के आसपास इंटरकोर्स हुआ तो फिर देन यू विल हैव प्रेगनेंसी। बट पीसीओएस के केस में क्या होता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग एंड दे ऑल डोंट रीच द मेच्योरिटी, मतलब वो लोग ऐसा होता है कि मल्टीपल फॉलिकल क्योंकि बनते हैं, एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एक पर्टिकुलर फॉलिकल जाके रिलीज नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस में पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, तो इसलिए ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। पर कई केसेस में आप इसे वेट मैनेजमेंट या बहुत सारे अदर थिंग से मैनेज कर सकते हैं। तो पीसीओएस में मेनली प्रॉब्लम यही होती है कि टाइम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, साइकिल की लेंथ कांस्टेंट नहीं होती है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत सारी और हार्मोनल इश्यूज हो जाती हैं, तो दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी बट नॉट ऑलवेज। So PCOS is different from infertility. PCOS may cause infertility. Ma'am, PCOD is a kind of a fibroid, is नो, it? फाइब्रॉइड्स तो यूट्रस में होते हैं, सिस्ट जैसा कई बार कहते हैं ना, चॉकलेट सिस्ट या सिस्ट Hmm. जैसी वर्ड यूज करते हैं, तो सिस्ट क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक जो अल्ट्रासाउंड में दिखे उसको आप सिस्ट बोलते हो, तो Hmm. ओवरीज पे जब मल्टीपल ऐसे फॉलिकल्स बन जाते हैं तो वो सिस्ट की तरह दिखने लगते हैं एक अल्ट्रासाउंड के That is ड्यूरेशन दौरान। fibroid. नो नो नो, फाइब्रॉइड तो यूट्रस के अंदर होता है, हम तो ओवरी के ऊपर की बात कर रहे हैं ना, ब्लिस्टर जैसे दिखते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। तो अल्ट्रासाउंड जब आप करते हो ना तो कोई भी फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर गोल गोल ब्लैक ब्लैक इकोजेनिसिटी डिफरेंट होती है उसकी, ऐसी गोल गोल दिखते हैं, तो वो होती है। बहुत सारे दिखे जब आपको, नॉर्मली आप किसी नॉर्मल फीमेल का अल्ट्रासाउंड करेंगे आपको एक ऐसा फॉलिकल दिखेगा, ब्लैक ब्लैक सा गोला, अगर सिंपल टर्म्स में अल्ट्रासाउंड समझो तो, और अगर पॉलिसिस्टिक रहेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक गोले दिखेंगे तो Okay. वो होता है पॉलिसिस्टिक ये ओवरी। होता किस वजह से, लाइक वुमेन में क्यों, किस वजह से होता है? Genetic, a lot of it has to do with genetic causes. There are genetic causes for PCOS, and आज से बहुत साल पहले ये बहुत कम जीन जेनेटिक कॉज जब किसी चीज की होती है ना, तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, और वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से चिल्ड्रन ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, राइट। वो तो काइंड ऑफ अ ट्री, हाँ, तो 100 ब्रांचेस ईयर्स, yes, many of it has to, ऐसा नहीं कह सकते कि 100% जेनेटिक है, बट मोस्ट ऑफ इट has to do with genetic causes. Some of it has to do with hormonal imbalances, endocrine disruptors that you have. But genetic cause होने के कारण आज से 100 साल पहले अगर कुछ डिफेक्टिव जीन्स जो थे वो जीन्स धीरे 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 करके स्प्रेड करते, तो इसीलिए पॉलिसिस्टिक ओवरीज का जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ा है। जो हम कहते थे ना, मम्मियाँ कहती थी कि हमारे जमाने में तो हमने नहीं सुना था, भाई तब वो जेनेटिकली इतना फैला नहीं था जितना अभी फैल गया है।
है ना? तो इसलिए yes, a lot of it has to do with genetic causes, but at the same time, just because you have PCO, उसमें क्या होता है कि बॉडी वेट इंक्रीज होना, हेयर हिस्टुरिज्म जिसे कहते हैं, ये होना, और बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाती हैं। फीमेल यंग एडोलेसेंट एज से ये होने लग जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट Hmm. for those females to, but the thing is, if you can control, you just have to accept it, first of all, that there is nothing you can do much about it. You have to have a जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आप एक गोली लेते हो और वो इजीली सॉल्व हो Hmm. जाती है, राइट? सो वो इजियर रूट है। पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली इजी रूट नहीं है। उनको अपना इंसुलिन लेवल्स जो होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनको मेंटेन के लिए बेस्ट तरीका है बॉडी वेट को कंट्रोल में रखो, और कांस्टेंट एक्सरसाइजिंग, बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना, बीएमआई लो रखना। ऐसा अगर आपने रखा, खाने की कई चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी जो प्रॉब्लम दे सकती हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइड फॉलो कीजिए, ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। इट्स अ साइकिल, जैसे कि पहले पेडल मारते हैं तो साइकिल में बहुत एफर्ट लगता है, राइट? बाइसिकल में जब अपन शुरू करते हैं एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार रोलिंग आ जाती है तब कितना इजीली बिना पेडल के भी काफी दूर चल Hmm. जाता है। आपको कॉन्स्टेंटली वो चलाते रहना पड़ेगा। आपने उसे स्टॉप किया तो रोलिंग इफेक्ट के थ्रू थोड़ी दूर पहुंचोगे, फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर अपना बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए खाने से लेके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फूड एंड एक्सरसाइजिंग, ये आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये अगर आपने किया तो देन यू आर लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि आपको इनफर्टिलिटी आईवीएफ ही लेना पड़ेगा। कई पेशेंट्स कैन कंट्रोल दीज थिंग्स थ्रू एक्सरसाइज, डाइट, योगा एंड ऑल ऑफ दैट इन लॉन्ग रन। यू कैनॉट लीव दीज थिंग्स, मतलब एक वेट आ गया तो हमने छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। Our last question is, in cases of unsuccessful fertilization or embryo development, how do you analyze and troubleshoot the potential causes? Can you provide an example of challenging case you have encountered and the steps you took to address it? Okay. So honestly, there are many cases where, that is the best thing about embryology. You get to, if you love this field, you see challenging things every day. Some specific examples, I remember some specific cases very clearly. उनके ना images छप जाते हैं आपके दिमाग में, उनके embryos के, उनके eggs के। तो I think what is interesting is एक case I will share, image of an oocyte, what a normal oocyte looks and what that looks. So what happened was this patient, she was very young, I think some 27, 28, for IVF young होते हैं 27, 28 वाले। तो 27, 28-year-old patient with multiple 2 times IVF, कहीं और किसी और से छोटे टाउन से आई थी। कहीं और से आने के बाद 2 times आईवीएफ फेलियर कहीं और का लेके आई थी। तो ऐसे बहुत बार आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसे में हम लोग जब आईवीएफ फेलियर वाले केसेस होते हैं, हम सबसे पहले उनकी केस हिस्ट्री वगैरह हम देखना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट से कितने oocytes रिट्रीव हुए थे, उसका रिस्पॉन्स कैसा था, कौन से दिन में ट्रांसफर किया था। तो ये सब डिटेल्स देख के हमें दिखा कि डे 3 पे कुछ खास, मतलब ऐसे कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी ऐसी फील नहीं आई थी उसको रिपोर्ट देखने के बाद। उसका जिस दिन पिकअप हुआ, फिर हम लोग जब उसकी ऐसे ही जब भी आईवीएफ फेलियर के केसेस होते हैं ना, तो हम उसमें ना एक सी वाला प्रोसीजर यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसके हस्बैंड भी शायद थोड़ा बॉर्डर लाइन पैरामीटर्स थे। तो हमने जब इक्सी के लिए प्रिपरेशन किया, फिर जब हमने उन एग्स को देखा, तो उस एग में एक उसकी आप जब फोटो देखोगे तो देखते ही समझ में आ जाती है कि उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटर कवरिंग था। उसका ना उसकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट आती थी, से एगार लाइक बोलते हैं, लाइक इट्स अ आउटर कवरिंग को जोना कहते हैं। उस जोना के 3 प्रोटीन के स्ट्रक्चर से वो वीव होके जोना की कवरिंग बनती है। उसमें से इस जेनेटिक डिफेक्ट में एक प्रोटीन आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, और उस वजह से ऐसा समझिए कि धागे की बुनाई होती है तो 2 धागे ऐसे और एक क्रॉस सेक्शन में जाएगा, तभी वो टाइट बनेगा। तो इसमें वो क्रॉस सेक्शन वाली जो प्रोटीन होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, तो बड़ा फ्रेजाइल सा जोना रहता है। तो ऐसे केसेस में ये एक तो एम्ब्रियोलॉजी में आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है। जब आप ऐसे Hmm. बहुत सारे मैंने पेपर्स देखे थे, ऐसे इमेजेस देखे थे जहाँ
पता चला था कि ऐसे केसेस में यूजुअली नेचुरली फर्टिलाइजेशन होना मुश्किल होता है। इसी वजह से पेशेंट आया था ना, राइट, उसका नेचुरली हो नहीं पा रहा था। और हम्म। ऐसे केसेस में यूजुअली ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट में वो ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी डेथली बेबी और प्रेगनेंसीज यूजुअली नहीं आती है। ये 2018-19 की बात है जब हमने ये केस हैंडल किया था। तो उस एग को या oocyte को देखते ही समझ में आ गया था कि दिस इज अ oocyte विद अ जेनेटिक प्रॉब्लम। अब होना ये चाहिए था कायदे से फर्स्ट टाइम जब उसका, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, तो आप 4 बार भी आईवीएफ करा लो, आपकी हर बार oocyte ऐसी ही आएगी। वो प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है आपकी बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि किसी फर्स्ट साइकिल में प्रोड्यूस हुआ है, सेकंड में नहीं हुआ है। तो उस एग को, एम्ब्रियोज, उस oocyte को आप जब देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, कायदे से एम्ब्रियोलॉजिस्ट को तभी पकड़ लेना चाहिए कि ये गड़बड़ है इसमें। और ऐसे केस में पेशेंट काउंसलिंग होना चाहिए कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, और इस जेनेटिक प्रॉब्लम का मल्टीपल आईवीएफ करा लोगे तो भी नतीजा शायद ऐसा ही निकलेगा। देखो 100% साइंस नहीं है ये, सो वी कांट से कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती इससे, राइट। यू हैव टू जस्ट पुट द फैक्ट्स फॉरवर्ड। तो हमने फिर भी फर्टिलाइजेशन ट्राई किया, लेकिन वो एज जो प्रीवियस लिटरेचर ने बताया था कि वही था, वो डे 5 तक ऐसे केस में अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते। शी डिड नॉट कंसीव इन दैट साइकिल, मतलब ऐसे ब्लास्टोसिस बने ही नहीं जो हम ट्रांसफर कर सके। So the patient was counseled and she went for donor eggs because एक तो poor background के भी होते हैं, तो how many cycles can you try, right? तो then she conceived with a donor egg and all. But उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले साल ही एक पेपर और रिलीज हुआ जिसमें हमने देखा कि आई थिंक इट वाज इन द साउथ एशियन बेल्ट, जहां पे उन्होंने ऐसे एम्ब्रियोज का पूरा डेटा उन्होंने कलेक्ट करके दे हैव रिपोर्टेड 30 प्रेगनेंसीज यूजिंग दिस काइंड ऑफ एन oocyte। नाउ रिसर्च किया है तो बेसिकली विच मीन्स कि अब अगर हम ऐसे ही oocytes एनकाउंटर करें, तो नाउ यू अगेन हैव टू पुट दिस फॉरवर्ड टू द पेशेंट सेइंग कि देयर आर चांसेस बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। बट ये एक लिमिटेड चीज ही होती है, कोई भी पेशेंट के पास इतना पेशेंस, इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो इतने सारे केसेस ट्राई करे। So they will at least have an informed choice that they can make. So ये वाले embryos and oocytes की images ना आंखों में छप जाती है। तो this was something very interesting which I dealt with in last few years. So, ma'am, at last, I would like to request you to convey a beautiful message for this International Women's Day for the women. Okay. So well, I want to say that empowerment is different and privilege is different. I think yes, I still think that women are privileged to be born as women. The kind of wholesome exercise, experiences that we have, no men can ever have. So I'm very proud of the fact that I'm a woman, and गुस्से में आके बहुत बार कह देती हूँ कि अगली जन्म में ना तो लड़का ही बनना चाहती हूँ, but I honestly don't think I Yes, want yes, to be a yes. हर वुमेन बोलती है कि अगले हाँ, जन्म में तो लगता ही हाँ, ऑनेस्टली, बट इन ऑल ऑनेस्टली अगर मुझे दोबारा भी वुमेन बनना पड़े तो आई वुड वांट टू, बिकॉज ये एक्सपीरियंसेस ना एक मैन नहीं फील कर सकता। आई थिंक लाइफ इज अबाउट इमोशंस, एंड द कैटapult ऑफ इमोशंस दैट वी हैव, अनफॉर्चुनेटली men don't. So yes, it's a privilege to be a woman. You should enjoy every phase of your life. Never say ये वाला अच्छा नहीं, बुरा नहीं। I know ये मैसेज देते वक्त, ज्ञान देते वक्त मैं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही संडेज को बच्चे आ जाएंगे मुझे तुरंत लगेगा कि ओ गॉड तुम लोग कब बड़े होंगे and all that. But having said everything, let us enjoy what we have. Let us enjoy all the, being a woman in India, especially in Indore, it's great. We are a safe city. We are a great country where we are not oppressed. And I think with privilege comes a lot of responsibility. So the responsibility that we have upon us is of our next generation. So we have to do whatever it takes to preserve the next generation. And it is not just by, wanting to have children and all that. So if you, uh, some of the women might choose not to have children, which is fine. It is your choice, your life, your decision. But the women who think that they want to have a family, they want to have children in future, so you have to start as girls. So when you are girls and we are growing up,
and you think that you would want to have a family, then you definitely have to take care of your body. You have to understand the biological clock. You have to understand that whatever you eat, whatever you experience, that all goes to a single cell, which is your egg cell. So take proper care of yourself, sleep properly, eat properly, and stay happy. That is all that I want to say. Thank you so much, ma'am. We are glad to have you on our platform, and thank you so much for giving your precious time. So Well, I think कि हमारी जो ऑडियंस होगी उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हमारा ये वीडियो देखने के बाद, because they have only asked these questions. तो आई थिंक हम लोगों ने जिस तरह से अभी कम्युनिकेट किया है उन लोगों को प्रॉपरली नॉलेज मिल सके. So thank you और so आगे much, भी ma'am. कोई डाउट और क्वेश्चंस होंगे तो मैं ना सोशल मीडिया के 2-4 जगह पे तुमसे पूछ लेंगे, तो तुम शेयर कर देना नंबर. आई विल सॉल्व दैट डाउट्स इफ दे हैव इन करियर Uh, और व्हाटएवर. आई विल डू व्हाटएवर आई कैन. ओके. okay. थैंक Thank यू you, सो ma'am. मच. बाय.